Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So students, today we are going to do class 12th book Vistas chapter 5, that is Should Wizard Hit Mommy? And the name of the chapter takes a question mark with it. ये क्यों है? What is the reason behind it? We'll talk during the explanation of the chapter. This chapter is written by John Updike. Let's talk about John Updike first. John Hoare Updike was an American novelist, poet, short story writer, art critic, and literary critic. Updike's most famous work is Rabbit series. His Rabbit series में he has written so many novels. Both Rabbit is Rich and Rabbit at Rest received the Pulitzer Prize. The people who are very much interested in literature, they must be aware of this prize. Or he is the only writer who have honored with this Pulitzer Prize more than one time. 4 times he has been awarded with this. Updike's mother was a great source of encouragement for him. जब उनको एक स्किन डिसीज हो गया था, उस स्किन डिसीज में nobody loves to come near him. तब उस at that moment, उस critical moment में इनकी मदर ने इनको बहुत encourage किया था. That's why he owes his literary achievements to the moral support he received from his mother. Moreover, हम इससे ये भी सोच सकते हैं कि जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, then you come to know कि how he just tried to share his own experiences of his childhood, favoring his mother. Now, let's talk about the style of his writing. Describing his subject as American small town, Protestant middle class, Updike was widely recognized for his careful craftsmanship, his unique prose style, and his prolific output. Having published more than 20 novels and more than a dozen short story collections, as well as poetry, art criticism, literary criticism, and children's books. Hundreds of his stories, reviews, and poems appeared in the New Yorker starting in 1954. He also wrote regularly for the New York Review of Books. Means, or mostly when we'll read this chapter, and if you read some other work of his, then you people come to know he has taken this, the middle class people as a protagonist of his stories. यहाँ पर भी the protagonist of the story, the main character of the story, he belongs to a middle class. तो इस लेसन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं. In this chapter, John Updike presents the world view of a little child, Jo, warmly responds to her father's storytelling. But she can't excuse Roger Skunk's mother for making poor little Roger smell bad. यहाँ पे देर आर टू मेन कैरेक्टर्स का भी इंट्रोडक्शन मैं भी आपको दूंगी. तो यहाँ बेसिकली जॉन अपडाइक ने ही ट्राइज टू शो द वर्ड थ्रू द आईज ऑफ अ चिल्ड्रन कि अ चाइल्ड, एक बच्चे का क्या परसेप्शन होता है इस दुनिया को देखने का, एक अडल्ट का क्या परसेप्शन होता है. देयर इज अ डिफरेंस इन दैट व्हिच इज शोन हियर इन द चैप्टर. और वी कुड से इट शोज अ जनरेशन गैप which can never be fulfilled among the generations. तो हाँ, hero must smell like roses. You come to know कि रॉजर स्कंक के साथ प्रॉब्लम होता है. Then how he got to smell like roses. Then she wants her father to tell a different story in which little changes has made. So what was the end given by her father? Jo denied to accept that. She wants her father to change the ending of the story. Or in that version, the wizard takes magic wand and hits Roger Skunk's mummy. But he is a die hard, फेवर कर रहा है वो मदर्स को. यहाँ पर किस तरीके से उसने प्रूव किया है, we'll read. There are some vocabulary words which are given during the chapter. When you read it, you can find out their meanings here. Now these are the two characters, Joe and Joe's father Jack. Two more characters, that's wizard, Roger Skunk. Roger Skunk also is an important part of the chapter. Then here is an owl who is called Wise in the chapter, and Joe's mother. Now, who's a wizard?
wizard, a magician, a wizard, or a person known under one of many other possible terms in fiction. It's someone who uses or practices magic that derives from supernatural or occult sources. मीन्स जैसे हम जादू अपनी लैंग्वेज में जादूगर कह देते हैं, magician जो जादू करता है, supernatural powers को include करके, that is a wizard. Then what are the skunks? Skunks जो हैं mammals होते हैं और they are known for their बैड स्मेल. उनके अंदर से एक फॉल स्मेल आता है, बड़ा खराब स्मेल करते हैं वो. और इनकी जो अपियरेंस है इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. डिफरेंट स्पीशीज आर देयर. ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, क्रीम भी होते हैं. और स्कंक्स they comes from the family of weasels, otters and badgers, if you have seen them. Now the question which is raised by the lesson, or we could say the message or the theme which writer wants to convey is, as children grow up, they become inquisitive and they begin to ask many questions. They want to know why and how certain things happen. And it is truth, not in the chapter, it is a universal truth कि जैसे जैसे आप grow up होते हैं, you know come across so many new things, आपको अपने surroundings के बारे में पता चलता है, तो बच्चे inquisitive होते हैं और होना भी चाहिए. If you are not inquisitive, you're not going to increase your knowledge. जब तक आप पूछेंगे नहीं और उनका आंसर नहीं मिलेगा, तब तक आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं होगी. बट जब वो सब चीजों के पीछे लॉजिक और रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स टेक दिस क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड अफ्रंट. दे ट्राई टू डिस्करेज देम, दे वांट टू एक्सेप्ट एज ट्रू व्हाटएवर इज सेड टू देम. और कई कई क्वेश्चंस के जवाब पेरेंट्स बहुत इजीली बच्चों को दे देते हैं. कुछ क्वेश्चंस बच्चों से ऐसे पुटअप किए जाते हैं जिनका जवाब या तो अडल्ट्स देना नहीं चाहते या उन्हें कई बार समझ में नहीं आता कि ये चीज बच्चे के लेवल पर जाकर कैसे समझाई जाए. और जो वो बच्चे को उस बारे में बताते हैं, दे थिंक कि बच्चा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर जो बताया गया उसको एक्सेप्ट कर ले. बट इट नॉट एवरी टाइम कि चाइल्ड इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट. तो इज इट दिस एटीट्यूड डिजायरेबल? द लेसन पोजेस दिस वेरी क्वेश्चन कि क्या अडल्ट्स का ये जो एटीट्यूड है कि जैसा उन्होंने कह दिया बच्चे अब उसी को सही मान के सच मानकर आगे बढ़े. तो इज इट द करेक्ट एटीट्यूड शोन बाय द पेरेंट्स और द अडल्ट्स? So now here, because the chapter is quite lengthy in your textbooks, so this is a simplified version of the story. Simple sentences में, points में story का summary लिखी गई है. I'll explain according to that. यहाँ पर एक 2 साल की बच्ची है. अब स्टोरी टेलिंग हम आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चों को क्या है, स्टोरी टेलिंग की जाती है छोटे बच्चों को ताकि वो उसको सुने. बेसिकली रीजन बिहाइंड दैट इज कि बच्चे सो जाएं. बट देयर आर सर्टेन मोरल स्टोरीज जो बच्चों को बताई जाते हैं, इनसे उन्हें एथिक्स के बारे में, मॉरल, अपनी मैथोलॉजी के बारे में, सब चीजों के बारे में पता चलता है. तो यहाँ भी एक 2 साल पुराना कस्टम बताया गया है, जो सिर्फ 2 साल हुए थे उस कस्टम को शुरू हुए उनके घर में. दैट वाज अ स्टोरी टेलिंग. तो जो है जैक, द फादर of Joe, Jack used to tell stories to his daughter Joe in the evenings and for Saturday naps. Naps आपको मैंने मीनिंग में पहले बताया है, छोटी नींद होती है. नैप्स के लिए उसको सैटरडेज को या शाम को ये छोटी छोटी स्टोरी जैक सुनाया करता था. जो है, इसका पूरा नाम है जॉनी, लेकिन स्टोरी में थ्रू आउट द स्टोरी इसको जो बोला गया है. और ये कस्टम, स्टोरी टेलिंग का कस्टम कब शुरू हुआ था? जब वो 2 साल की थी. और अब ये 2 साल पुराना हो चुका था. इट मीन्स जो इज नाउ 4 years old. तो एवरी स्टोरी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन हेड. हर एक कहानी जो जैक सुनाता था वो सब अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से. तो यहाँ एक ट्रेट्स आपके सामने आएगा जैक का कि ही इज वेरी क्रिएटिव, कि वो खुद के दिमाग से खुद बनाई हुई स्टोरी सुनाया करता था. बट ईच स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल. जो बेसिक प्लॉटिंग होती है स्टोरी की वो वही होती थी सेम, लेकिन हल्का सा उसमें वेरिएशन होता था. अब वो वेरिएशन क्या होता था स्टोरी का कि हर एक स्टोरी में एक स्मॉल क्रीचर रोजर होता था, और वो फिश, क्विरल, चिंपक, मंकी, एनीथिंग, कैट, कुछ भी हो सकता था. और फिर हर एक स्टोरी में रॉजर के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो वाइज आउल के पास जाता था.
आउल उसको विजर्ड के पास भेज देता था और विजर्ड कुछ मैजिक स्पेल करके उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। और फिर वो बदले में विजर्ड जो है उसे पेमेंट डिमांड करता था, और वो पेमेंट हमेशा जितना रॉजर के पास होता था उससे ज्यादा की होती थी। फिर विजर्ड खुद ही वो भी उसको उसका भी सॉल्यूशन बताता था रॉजर को कि आप उस जगह जाइए और वहां से आपको एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी एंड गिव दैट टू मी। और फिर जब वो विजर्ड को सेटल कर देता था, मींस सारा पैसा उसको जो भी जितनी भी पेनीज चाहिए होती थी उसको मिलती थी, उसको देकर वो वापस अपने घर पर चला जाता था रॉजर। अब एंडिंग क्या होती थी कि जब रॉजर बहुत खुशी खुशी अब दूसरे एनिमल्स के साथ जितने भी वहां जंगल में मिलते हैं उसके साथ सबके साथ खेलता था, फिर वो अपनी मम्मी के पास घर चला जाता था। कब? उसी टाइम जब उसको ट्रेन की विसल सुनाई देती थी। अब ट्रेन की विसल, ये वो ट्रेन थी जो कि डैडी स्कंक को बॉस्टन से वापस लेकर आती थी, मीन्स उसके फादर के वापस आने का टाइम हो जाता था। और फिर जैक डिस्क्राइब करता था कि वो खाने में क्या क्या खाते थे और उसके बाद स्टोरी ओवर हो जाती थी। Walking this way was a very tiring on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore. तो ये स्टोरी बेसिक टेल तो यही रहती थी, लेकिन अब ये काम बड़ा टायरिंग हो गया था, और क्योंकि जो बड़ी हो गई थी और अब वो जल्दी से सोती नहीं थी, तो कई बार जैक को ये भी लगता था कि ये जो कस्टम है इट सीम्स फ्यूटाइल, वेस्ट ऑफ टाइम लगता था कि ये सोती तो है नहीं, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ इट। अब यहाँ पर आज की कहानी शुरू होती है। ऑल्दो अभी उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम बॉबी है, जो अभी 2 साल का है। वो ऑलरेडी सो चुका है अपना दूध की बोतल लेकर, और इसके बाद अब वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है। तो अब यहाँ पर हम जब ये स्टोरी शुरू होगी तो अब जो जो का जो है एक नया पर्सपेक्टिव हमारे सामने आएगा टुवर्ड्स द वर्ल्ड। The little girl was 4 years old, did not find that some magic would occur and would sleep like an infant of 2, क्योंकि अब उसे पता था वो चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढती थी, रियलिटी ढूंढती थी, तो अभी उसको इतनी जल्दी नींद नहीं आती थी। अब और जैक जो है, अब शुरू करते हैं। तो जब जैक कहता है कि हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, भाई आज किसके बारे में कहानी होगी, तो पहले तो वो कहती है रॉजर, और रॉजर के साथ ही वो कह देते हैं स्कंक। तो अब स्कंक जो है एक न्यू एनिमल था, एक न्यू हीरो मिला था रॉजर जैक को अपनी स्टोरी के लिए। बट स्कंक के बारे में जैक के दिमाग में आता है कि उसने पहले कभी भी स्कंक के बारे में घर में बात नहीं की। बट नाउ एज जो है स्टार्टेड टू गो टू हर नर्सरी, तो शायद वो एनिमल के बारे में उसने वहीं पर सुना होगा। तो उसे एक नया एनिमल आज मिला था, वो बड़ा एंथुसियाज्म से भर गया था ये नई कहानी सुनाने के लिए। He at once started narrating his story like in once upon a time there was a tiny little creature named Roger Skunk and he smells so bad. अब जैसी वो कहानी शुरू करता है और बोलता है कि रोजर स्कंक नाम का एक लिटिल क्रीचर था एक जंगल में जिसमें से बहुत स्मेल आती थी। तो अब क्योंकि उसमें से बहुत स्मेल आती थी, तो बाकी जितने क्रीचर्स थे वहां पर जंगल में, तो डोंट वांट टू प्ले विद हिम, क्योंकि वो बैड ऑर्डर करता था। और उससे जैसे ही वो दूसरे क्रीचर्स के पास पहुंचता था, वो ओहो हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक कहकर उससे दूर भाग जाते थे। और फिर वो बेचारा रॉजर स्कंक वहां अकेला रह जाता था और उसकी आंखों से आंसू बहते थे। अब जो लिटिल जो कुड ऑलरेडी गेस व्हाट वुड बी द स्टोरी लाइन नेक्स्ट। अब वो ये तो सोचने लग जाती है कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि नाउ दिस इज द प्रॉब्लम विद रॉजर स्कंक, दैट ही स्मेल्स बैड। तो उससे पहले यहाँ जो का रिएक्शन आता है, नाउ जो हैज स्टार्टेड फीलिंग हरसेल्फ इन प्लेस ऑफ रॉजर स्कंक। तो जब उस ये सुनती है कि एवरीबडी जस्ट रन अवे फ्रॉम हिम, तो उसको बड़ा बुरा लगता है और वो इमेजिन करती है कि उसके पास से सब बाहर चले गए, और थोड़ा सा अपने फेस एक्सप्रेशंस भी चेंज करते हैं कि जैसे उसके आंसू आ गए। आगे वो कहती है कि क्या वॉन्ट ही सी द आउल, उसको आउल नहीं मिला। तो Jack continued, there lived a big wise owl in the tip top of a tree. Roger Skunk told him his pathetic tale. The wise owl advised him to go to the wizard. अब जैक यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर उसको टोकता है कि जैक स्टोरी सुना रहा है, तो ही डजंट वांट इट। एक उस यहाँ पर एक दूसरा ट्रेट हमारे सामने आता है जैक का, कि वो कहता है कि उसे वो फीमेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो चीजों को
और फॉर ग्रांटेड लेती हैं, क्योंकि यहाँ वो आगे आगे, क्योंकि उसको बेसिक टेल पता है तो वो आगे की बात बोल रही है। तो जैक जो है उसको अच्छा नहीं लगता उस टाइम। लेकिन जब रॉजर स्कंक के बारे में ये बात कहता है जैक कि ही स्मेल्स सो बैड, तो दिस इज हिज चाइल्डहुड मेमोरी, बिकॉज अपडाइक वांट टू गिव अ टच ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो कहता है उसकी एक चाइल्डहुड मेमोरी कुछ वापस आती है, जिसमें शायद वो ह्यूमिलेशन उसने भी फील किया था, कि शायद उसके कोई दोस्त नहीं थे, कोई उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। तो वो खुद के एक्सपीरियंस से कहानी सुना रहा है, और वो चाहता है कि उसे जल्दी नहीं है कहानी को आगे बढ़ाने की। ऑल दो जो उसकी वाइफ है क्लेयर, वो क्योंकि यहाँ पर फ्लोर पर इसको स्टोरी सुना रहा है बच्चे को सुलाने के लिए, लेकिन जो नीचे वाले फ्लोर पर उसकी वाइफ जो है पेंटिंग का काम उन्होंने शुरू कर रखा है। उसकी वाइफ का नाम है क्लेयर। एक तरफ तो वो अपनी वाइफ को हेल्प करना चाहता है जल्दी से जोश हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जिस जिस तरीके से स्टोरी उसने नरेट करनी शुरू की है, ही डजंट वांट कि बहुत जल्दी कंक्लूजन पर आया जाए। वो यहाँ पर जो कोई एक ऐसी चीज समझाना चाहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चाहता है कि जो ध्यान से उसकी बात को सुने। At last Roger Skunk came to a little white house. आउल के पास जाता है, आउल उसको विजिट के पास भेजता है। तो वो एक छोटे से व्हाइट हाउस पर पहुंचता है। वहां देखता है कि छोटे से ओल्ड मैन ने दरवाजा खोला, जिसकी व्हाइट बियर्ड है और एक पॉइंटेड ब्लू हैट उसने पहना हुआ। अब रॉजर स्कंक टोल्ड विजर्ड दैट ही स्मेल वेरी बैडली, और बताता है कि उसके अंदर से बहुत स्मेल आता है, और इस वजह से सारे एनिमल्स उससे दूर भाग जाते हैं। और फिर विजर्ड कहता है ठीक है, तुम अंदर आओ। और फिर वो कुछ मैजिक करता है उसको, और फिर उसको पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, कि कौन सी स्मेल तुम्हारे अंदर से आए। तो वो बड़ा सोचकर कहता है कि ठीक है रोजेस की। तो अपना मैजिक बैंड निकालता है और ही मेक हिम स्मेल लाइक रोजेस। अब उसके बदले में विजर्ड उसे 7 पेनीज मांगता है। रॉजर हैड ओनली 4। फिर ही स्टार्टेड क्राइंग। तो विजर्ड दोबारा से उसको मैजिक वेल का रास्ता बताता है, जहां से उसको बचे हुए 3 पेनीज मिल जाते हैं। नाउ ही टुक देम बैक टू द विजर्ड, विजर्ड को देता है। और अब रॉजर बहुत हैप्पी है, ही इज वेरी मच हैप्पी कि नाउ ही स्मेल्स लाइक रोजेस। Now, when he went to the wood, all the other little animals gathered around him. They played games and laughed all afternoon. Now he's very happy कि सब उसके पास आ गए हैं, सब मिलकर खेल रहे हैं। फिर उसके बाद वैसे ही विस्लिंग होती है, वो घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, तो रॉजर्स कंक्स मदर डजंट लाइक the change in its smell. Roger Skunk's mommy asked him what that awful smell was. कहते हैं कि it is not the smell of my child. Who's that? It cannot be my child. So Roger replied that it is he himself who is smelling like roses. और ये उसने कैसे चेंज किया? वो विजर्ड की हेल्प से उसने अपना स्मेल चेंज कर दिया। तो वो कहती है कि नो 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 नो, इट कैन नॉट बी डन लाइक दैट। यू आर नॉट स्मेलिंग लाइक माई ओन चाइल्ड। तो और मैं आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू बी स्मेल लाइक दिस। तो कहती है अभी के अभी हम उस ऑफुल विजर्ड के पास चलेंगे एंड विल आस्क हिम टू चेंज यू एज यू वर स्मेलिंग अर्लियर। तो रॉजर मना करता है कि नहीं, वो वैसा वापस नहीं स्मेल करना चाहता, स्मेल बैक नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर उसके साथ कोई भी क्रीचर आके नहीं खेलेगा। तो उसकी मदर कहती है कि शी डिडंट केयर अबाउट इट, कि कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं, लेकिन उनको अपने बच्चे से वही स्मेल चाहिए जैसी उसकी थी। अब व्हाई शी वाज स्टिक टू दैट पॉइंट, आई लेट यू नो एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आगे जो वो वापस उसके पास जाते हैं और विजिट को, वो यहाँ पे एट दिस पॉइंट वो विजिट को हिट करती है अपने अम्ब्रेला से उसके हेड पर, और उसको कहते हैं कि मेरे बेटे को वापस वैसा ही स्मेल करा दो। और जो विजर्ड होता है वो वापस उसको वैसे स्मेल करा देता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू जैक, कि जैक ने यहाँ पर स्टोरी का यहाँ पर एंड किया। बट नाउ जो डजंट वांट द स्टोरी टू बी एंडेड लाइक दिस, वो नहीं चाहती थी कि उसका एंड हो। क्यों? क्योंकि जो वाज देयर herself in place of रॉजर, वो फील कर सकती थी। तो नाउ शी इज वेरी मच एपेथेटिक। अपैथी का उसके अंदर आ रहा था फीलिंग कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो वापस वैसा ही उसका हीरो बुरा स्मेल करने लग जाए। तो वो फादर को अपने बार बार कहती है कि नहीं नहीं, आप ये स्टोरी की एंडिंग ठीक नहीं है, आप चेंज कीजिए इसको स्टोरी का,
क्या चेंज करने कहती है कि दैट मैजिक वेंट हिट दैट मॉमी, कि वो जो विजर्ड है उस मैजिक वेंट से उसकी मम्मी को हिट करे और मना कर दे कि नहीं, जो विल रॉजर विल स्मेल लाइक रोजेज ओनली। अब वो कहता है कि नहीं, ये एंड नहीं हो सकता। और अगेन यू नो ही, वही जो क्वेश्चन हम मैंने आपको बताया था रेज होता है, he doesn't want to follow whatever asked by the child। वो ये चाहता है कि नहीं, mothers are always right, whatever they do in favor of their child that is always correct। तो वो नहीं चाहता, यहाँ मदर के पर्सपेक्टिव से एक पेरेंटल, एक यूनिवर्सली एक जो पेरेंटल पर्सपेक्टिव है कि क्या होना चाहिए वो शो कर रहा है। तो यहाँ अब एक दो आपको देखने को मिलेंगे, टू डिफरेंट वर्ड। जो इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ड ऑफ अ चाइल्ड एंड जैक इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ड ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जैसा उन्होंने कह दिया दैट इज ऑलवेज करेक्ट और बच्चे को वैसा ही करना होगा। बट ऑन द अदर हैंड जो इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, वो ये चाहती है कि नहीं, स्टोरी को चेंज किया जाए और दूसरे एंडिंग की जाए। फिर जैक फिलहाल तो उसको कहता है कि लेट्स सी टुमारो। क्यों? क्योंकि अभी उसको बहुत जल्दी है अपनी वाइफ के पास जाने की, बिकॉज नीचे से बार बार सामान के खिसकने की आवाज आ रही है। तो उसको पता है कि बिकॉज क्लेयर इज नाउ 6 months प्रेग्नेंट, तो पता है कि उसकी वाइफ को इस टाइम उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर जैक जो है उसको अभी अधूरा छोड़कर कि ओके अभी मैं जाता हूँ क्योंकि आई हैव टू हेल्प योर मदर, और उसको सोने के लिए बोल देता है। और लेकिन जैसे ही नीचे जैक अपनी वाइफ क्लेयर के पास आता है, उसको ऊपर के फ्लोर पर उसके चलने की आवाज आती है। देन ही शाउटेड आउट कि बैठ जाओ, सो जाओ, नहीं तो आई विल स्लैप यू। अब यहाँ हेयर जैसे ही वो वहां पर आता है और अपनी वाइफ के पास पहुंचता है, तो वाइफ आते ही उसको देयर वाज अ कमेंट फ्रॉम वाइफ साइड कि दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। और ये जो एक कमेंट था उसकी वाइफ की तरफ से, इट मेक हिम डिस्टर्ब, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो ऊपर बार बार उसकी मदर की तरफ उसका ध्यान था कि क्लेयर इज अलोन, शी इज डूइंग ऑल द थिंग्स अलोन इन द 6 months प्रेगनेंसी, और वो पेंट का काम उसने अकेले शुरू कर दिया। बट एज सुन एज ही रीच्ड टू हिज वाइफ, और उसकी वाइफ उसको एक तरीके से कमेंट करती है कि आज एक लॉन्ग स्टोरी थी। ऑल्दो जैक वहां रिप्लाई करता है कि हाँ पुअर किड, तो यहाँ पर स्टिल ही वांट्स टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेटस ऑफ जो दैट टाइम, कि अगर जो अपनी जगह ये कह रही है कि कहानी की एंडिंग ठीक की जाए, कि वो हीरो को हर हालत में खुश देखना चाहते, तो शी वाज नॉट आल्सो रॉन्ग एट हर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यही यही डिलेमा में वो फंसा हुआ था कि क्या वो अपने बच्चे को जस्टिफाई करके आए वहां पर वो बात, या फिर जिस अगली मिडिल पोजीशन में नाउ ही वाज कॉट हियर कि हिज वाइफ डूइंग दैट पेंटिंग वर्क। और और अभी वो उसको ऐसा लग रहा था कि ही वाज देयर विद हिज वाइफ इन अ केज, चारों तरफ सामान है, फर्नीचर फैला हुआ जिसपे पेंट करना है, और वो अपने आप को केज में महसूस कर रहा था। जिस सोच के साथ, जिस फीलिंग के साथ वो अपनी वाइफ को यहाँ हेल्प करने के लिए आया था, वाइफ के एक छोटे से कमेंट ने उसको पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया था। नाउ ही डिडंट वांट टू स्पीक विद हर वाइफ, वर्क विद हर, ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग विद हर। कोई बात करना नहीं चाहता था, कोई काम करने का उसका मन नहीं होता। तो दैट वाज अगली मिडिल पोजीशन, कि ना तो वो बच्चे को सेटिस्फाई कर पाया विद दैट स्टोरी, विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, ऑन द अदर हैंड हिज वाइफ इज नॉट आल्सो हैप्पी। That was a story. And why Joe is not, Jack is not ready to accept this कि उसको वापस चेंज करना है, बिकॉज ये जो बैड स्मेल होती है, इट इज अ ट्रेट, इट इज ट्रेट ऑफ स्कंक्स, स्कंक्स का ट्रेट होता है, एंड इट्स काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव शील्ड स्कंक्स के लिए, विच सेव देम फ्रॉम द अटैक ऑफ प्रेडेटर्स। अगर वो उनके चारों तरफ वो प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं होगी तो कोई भी प्रेडेटर उसको आकर अटैक कर सकता है। एंड द मदर्स ऑलवेज वांट देयर चाइल्ड टू बी सेफ in each and every condition, each and every circumstance. That's why Roger Skunk's mother doesn't want him to change, him smell like roses and all. He wants him to be as bad as it was, because it was a not natural trait
the original form. It happens many times with us always. Many time happens with us. आप देखते हैं कि कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए try to change your personality, you try to change your behavior. It's not correct to change yourself. यही मॉरल इशू भी यहाँ पर इसमें, नॉट दैट ओनली कि क्या एक बच्चे के पर्सपेक्टिव हमेशा गलत होता है, पेरेंट्स का ठीक होता है। तो यहाँ उसकी मदर ने एक प्रोटेक्टर की तरीके से किया था, उसके लिए उस स्मेल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाना चाहती थी, और जैक उस चीज को फेवर कर रहा था। उसके अलावा जो सर्टेन यहाँ पे इश्यूज रेज हुए हैं वो हैं, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर। इसी के लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा बोर्ड के एग्जाम्स में। तो जॉन ऑफ डाइक्स शॉर्ट स्टोरी शुड विजिट हिट मॉमी रेजेस सर्टेन मॉरल इश्यूज, और ये क्वेश्चन मार्क के साथ जो इन्होंने टाइटल दिया है, इट मीन्स इट्स एन ओपन एंडेड स्टोरी। अपडाइक left it to on the readers कि what is their perspective to end this story, how they are going to adopt this story। और वो इश्यूज क्या है, जो बेसिक मॉरल इशू है वो है रेशियल सेग्रीगेशन, जैसा स्कंक के साथ हुआ था कि वो बैड स्मेल करता था तो लोगों ने, सारे बाकी क्रीचर्स ने उसको अपने से अलग कर दिया था। ऑल्दो देयर इज नो फॉल्ट ऑफ हिम, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है, फिर भी उसको इंटेंस सफरिंग फेस करनी पड़ी थी ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन। और क्योंकि वो सब लोग उससे दूर भाग जाते थे, वो बेचारा परेशान होता था, और इसलिए वो चाहता था कि उसका जो स्मेल है वो अच्छी हो जाए, लेकिन उसकी मदर नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की स्मेल चेंज की जाए, इसलिए वो वापस विजिट के पास जाती है, उसको वैसे ही स्मेल करवाती है, और जब उसमें से वही पहला स्मेल आने लग जाता है, वो उसको गले लगाती है, प्यार करती है। तो इसमें अनदर मॉरल वैल्यू इज दैट द चिल्ड्रन वेरीज विद अदर्स, आर्स अडल्ट से और चिल्ड्रन का, इनका बच्चों का जो एक पर्सपेक्टिव होता है दुनिया को देखने का, वो अलग अलग होता है। दूसरा है इसमें कि वी शुड नॉट लूज अवर ओरिजिनलिटी एंड आइडेंटिटी, व्हाट वी आर, the way we are given, the traits which are given by the god to us, we should not change that just to please other people। क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए उनको प्लीज कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो तो सामने आनी ही आनी है। तो ऑलवेज बी द ओरिजिनल। ugliness and hatred have no place in their idealized world। अगर बच्चों की बात करें तो उनके लिए अगली ने जो हेट्रेड है, भद्दापन है, कुछ भी उनकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। And Joy, that's why Joy is furious at Roger's mother. She made Roger smell bad again. Roger is Joe's hero and he must smell good, और heroes हमेशा अच्छे निकल कर आते हैं at the end of the story। And this is the conclusion given by me, you can read it। कि किस तरीके से कंक्लूजन भी यही है कि एक बच्चे का दुनिया को देखने का नजरिया, बड़ों के देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। बट इट डजंट मीन कि बच्चे गलत हैं या बड़े लोग उस चीज को लेकर गलत हैं। ये सारी दुनिया जो है मिस्ट्री, रोमांस, इन सब चीजों से भरी हुई है, और बच्चे नहीं चाहते कि इसमें अगलीनेस के लिए कोई भी जगह है। बट बीइंग एक्सपीरियंस, अडल्ट्स इस बात को समझते हैं, दे वांट चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट ऑल दोस रियलिटी आल्सो। This is the end of the chapter. I hope the chapter is clear to you people still. If any doubt is there, do comment on my videos, and keep liking and sharing my videos. Thank you. Bye bye. Take care.